Hello students. So in the last video we have seen about vector product. Yes or no? That means vector addition तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया. In the last video we have started that how can we multiply two vector. So हम लोगों ने दो देखा था. एक था vector product जिसका नाम था cross product and the second was scalar product. This scalar product is also known as dot product. ओके नाउ जो वेक्टर प्रोडक्ट था, वेक्टर प्रोडक्ट एक्चुअली कैसा था, ऐसा था ना क्रॉस, और ये इक्वल टू कितना होता था, ये इक्वल टू होता था ए बी साइन थीटा. दैट मीन्स वी कैन डिफाइन दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. ओके इफ द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. सिमिलरली स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, the product of two vectors, okay, the product of two vectors in terms of their magnitude along with the cos of the angle between them. So जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा, when we do dot product स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट then it is given by ए बी cos थीटा. Okay, so now जैसे कि लास्ट वीडियो में we have seen some properties of vector product, similarly there are some properties of scalar product. So let us see some properties of scalar product. Number one, scalar or what we call dot product is commutative. वेक्टर प्रोडक्ट क्या था, एंटी कम्यूटेटिव, बिकॉज उसमें डायरेक्शन आता था. जब डायरेक्शन चेंज करोगे तो माइनस साइन देना होता है. स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है. सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. सो व्हेन यू प्रोडक्ट, okay, when you dot product two vectors, whether you write a b or you write b a, it will give the same result because it is commutative. Okay. Number two, the product of two perpendicular vectors is given by, the product means the dot product of two perpendicular vector is given by, now if the two vectors are perpendicular, so a dot b, now a and b are perpendicular, तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का, a dot b का a b cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा cos 90. What is cos 90? 0. So the product of two perpendicular vector is given by a dot b equal to 0. Similarly, the dot product of two anti-parallel vector, anti-parallel vectors. Now if the two vectors are anti-parallel, anti-parallel मतलब एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, obviously 180 degree, then it will be AB cos 180. What is the value of cos 180? minus 1, so it will be equal to minus AB. Okay, so the dot product of two perpendicular vector is 0. The dot product of two anti-parallel vector is minus AB. चलो यहां तक लिख लो. Next, number 4. The dot product or the scalar product of two, or you can write of a vector with itself. With itself. That means अगर एक वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे a dot a. Now a dot a means what, that they are equal vector. दो सेम वेक्टर है. If they are same vector, what should be the angle between them? 0 degree. So a dot a will get what? A into a cos 0. Cos 0 is 1. That means a square. So the scalar product of a vector with itself gives square of the magnitude.
दैट मीन्स बी डॉट बी कितना होगा, बी स्क्वायर. ओके. नंबर 5, स्केलर प्रोडक्ट of two parallel vector. Now एंटी पैरेलल वेक्टर में माइनस मिला था, पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, a डॉट b. इफ दे आर पैरेलल, एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 0. cos 0 is 1, so you will get AB. The scalar product of two parallel vectors is given by AB. Okay, रफ कर दो. नेक्स्ट देखो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर्स याद है ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई जे के. नाउ आई डॉट आई. नाउ देखो, अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखा था ना, ए वेक्टर मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, क्या देता था हम लोगों को, उसका स्क्वायर. तो यहाँ पे आई डॉट आई क्या मिलेगा, आई स्क्वायर. नाउ आई क्या है, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1. तो आई स्क्वायर की जगह मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ. 1 स्क्वायर मतलब उसको क्या मिलेगा, 1. देखो, स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग डायरेक्शन तो लेता नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता है. ठीक है, आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1. इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1. दो सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1. सो सिमिलरली जे डॉट जे क्या होगा, 1. के डॉट के क्या होगा, 1. नाउ अगर आई डॉट जे लोगे, आई डॉट जे जब लोगे, अलग अलग वेक्टर लोगे, तो वो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. बिकॉज आई जे के आर व्हाट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक्स वाई जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो आई डॉट जे मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90. कॉस 90 क्या होता है, 0. सो 0. जे डॉट के 0, के डॉट आई 0. नाउ हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था ना, स्केलर प्रोडक्ट इज व्हाट, एंटी कम्यूटेटिव. स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब ए बी लिखो या बी ए सेम है, तो आई डॉट जे, जे डॉट आई, इट इज सेम ओनली. ओके, डन. नेक्स्ट, the scalar product of two vectors in terms of rectangular components. Okay, in terms of rectangular components. Rectangular components जो हम लोग को पिछले टाइम क्या मिला था, ऐसा डिटर्मिनेंट फॉर्म में. इसमें सिंपल है, अगर a डॉट बी करना है हम लोग को दो वेक्टर, तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टाइम पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए एक्स बी एक्स, ए का एक्स कंपोनेंट इंटू बी का एक्स कंपोनेंट, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. एकदम सिंपल. ए एक्स के साथ बी एक्स, ए वाई के साथ बी वाई, ए जेड के साथ बी जेड, खत्म. ओके, द कोसाइन ऑफ एंगल, जैसे उसमें साइन ऑफ एंगल था, यहां पे कोसाइन. द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कोसाइन मतलब ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट होगा. द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन बाय cos theta equals to a dot b divided by modulus of a dot modulus of b. तो ये हो गया cos theta निकालने का फॉर्मूला. ओके, आई होप यहां तक फॉर्मूला सब क्लियर है. ये फॉर्मूला भी है, प्रॉपर्टीज भी है. ठीक है, अभी इसके ऊपर बेस करके चलो आप लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ओके,
ओके, सो क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वेक्टर a इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू आई जे माइनस 2k। ओके, तो ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है वो निकालना है। ओके, तो नाउ देखो, ये वेक्टर a है ना, तो ये हो गया उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, ये वेक्टर b का x y z। सो यहाँ पे जो वेक्टर a का x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, i के आगे कितना है 1, तो ये कितना होगा 1। y कंपोनेंट कितना होगा, मतलब j का 2, और z कंपोनेंट कितना होगा k का -1, है कि नहीं? अगर माइनस है तो माइनस लेना है। सिमिलरली वेक्टर b का x कंपोनेंट कितना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, हम लोग इसे मैग्नीट्यूड लेना है। i के साथ है -1, तो ये आ गया -1, j के साथ है 1, तो ये आ गया 1, और k के साथ कितना है, z के साथ -2। ओके, तो ये ax, bx, ay, by, az, dz का हम लोग को वैल्यू मिल गया। नाउ एंगल निकालना है। वी नो दैट cos theta equal to a dot b divided by modulus of a modulus of b. Yes or no? So a dot b, a dot b का फॉर्मूला क्या था, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। So ax bx कितना होगा, 1 into -1, that means -1, प्लस ay by 2 into 1, 2, प्लस az -1 bz -2, 2 minus minus plus, so 2। So a dot b का वैल्यू कितना मिलेगा, 4 minus 1, that is equal to 3। दिख रहा है ना नीचे तक? तो ये हो गया a dot b का वैल्यू। ठीक है, अभी हम लोग को और क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। ना तुम लोग को मालूम है मॉडुलस ऑफ a का फॉर्मूला क्या होगा, √ax² प्लस ay² प्लस az²। तो मैं डायरेक्ट करता हूं, ax मतलब कितना आएगा 1², ay मतलब 2², az मतलब फिर से -1 होल स्क्वायर, तो 2² हो गया 4, 5, 6, तो कितना आएगा √6। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ वेक्टर b कितना आएगा, √(-1² प्लस 1² प्लस -2²। यस और नो? तो कितना आएगा 1, 2, 6, √6। ओके, तो मैं ये पार्ट रफ कर देता हूं। सो cos थीटा में अभी वैल्यू बैठा दो। सो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b कितना मिला 3, ये कितना मिला √6 इंटू √6। √6 मतलब कितना होगा, √6 होल स्क्वायर, दैट मीन्स cos थीटा इक्वल टू 3/6। 3/6 मतलब हाफ। cos का वैल्यू हाफ कब होता है, जब cos 60 डिग्री होता है। So in place of half you can write cos 60. Cos cancel, therefore theta equal to 60 degree. So what is the angle between the two vector? 60 degree. देख लो, clear? Okay, next question देखो. Prove that vector A equals to I plus 2j plus 3k and vector B equal to 2y minus j are perpendicular to each other. आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर कब होगा, अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ। परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, दैट एंगल बिटवीन देम विल बी हाउ मच, 90 डिग्री, एंड इफ इट इज 90 डिग्री देयर डॉट प्रोडक्ट a डॉट b विल बी इक्वल टू 0। यस और नो? जब भी क्वेश्चन में ऐसा है ना, शो दैट टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, यू हैव टू डू डॉट प्रोडक्ट। Show that two vectors are parallel, you have to do cross product, vector product. Okay, so show that two vectors are perpendicular. So here यहाँ पे ax कितना है 1, ay 2, az 3. Similarly bx 2, by -1 और bz है नहीं है, so bz 0. So therefore a dot b
इक्वल्स टू ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो देखो ए एक्स बी एक्स 1 इंटू 2 कितना आएगा 2, ए वाई बी वाई 2 इंटू -1 -2, ए जेड बी जेड 3 इंटू 0 प्लस 0 2 - 2 0। So A dot B equal to 0, therefore A perpendicular B। एकदम सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा अलग तरह का है। यहां पे दिया हुआ है इफ वेक्टर्स P, Q and R have magnitudes 5, 12 and 13 and P plus Q equal to R, find angle between Q and R। नाउ ये सब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है किसके बीच में एंगल निकालने दिया, Q एंड R। सो देखो, हाँ सोल्यूशन देखो समझ में आ जाएगा। गिवन क्या है हम लोग के पास, P प्लस Q इक्वल टू R। किसके किसके बीच में एंगल निकालने दिया है, Q एंड R। जिन दोनों के बीच में एंगल निकालने देगा वो दोनों को एक साइड में ले लो, ठीक है। अभी अगर Q एंड R की जगह P एंड R होता तो मैं R को इस तरफ ले जाता, Q को उस तरफ ले चला जाता। सो P एंड R को एक साइड में रखता। सिमिलरली Q एंड R है तो मैं P को इस तरफ रखता हूं और ठीक है R माइनस Q मैंने कर दिया। पिछले वाला में मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता तो P के टर्म्स में भी ऐसा ही कुछ मिलता, सॉरी Q के टर्म्स में। सो मुझको Q एंड R के बीच में एंगल निकालना है तो मैंने Q एंड R को एक साथ ले लिया, यही करना होता है, ठीक है। अभी क्या करोगे, इसका ना डॉट प्रोडक्ट कर दो। सो देयरफॉर P डॉट P, सो P डॉट P करोगे तो इस तरफ क्या आएगा, R माइनस Q डॉट R माइनस Q आएगा। P डॉट P क्या मिलेगा हम लोग को, P स्क्वायर। R इंटू R क्या होगा, R स्क्वायर, फिर माइनस R डॉट Q माइनस Q डॉट R एंड माइनस माइनस प्लस Q डॉट Q क्या होगा, Q स्क्वायर होगा। तो फिर से हम लोग को क्या मिला, देखो P स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ओके। एंड यहां पे देखो R डॉट Q, Q डॉट R, हम लोग को मालूम है ना A डॉट B, B डॉट A सेम होता है, दे आर द सेम कम्यूटेटिव। सो R डॉट Q की जगह या फिर Q डॉट R की जगह मैं लिख सकता हूं R डॉट Q। सो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, 2R डॉट Q होगा कि नहीं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, डॉट प्रोडक्ट लिखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, R डॉट Q मतलब क्या है, R Q cos थीटा। मैं लिख सकता हूं कि नहीं, R Q cos थीटा। यहां तक क्लियर है। सो देयरफॉर यहां से ये माइनस को इस तरफ ले आओ तो 2RQ इस तरफ आ गया, इस तरफ क्या बचा, R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। सो देयर सॉरी cos थीटा भी होगा, 2RQ cos थीटा इक्वल टू R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, है कि नहीं। मैं ये साइड रफ कर देता हूं। सो देयरफॉर यहां से मुझको क्या मिलेगा, cos थीटा इक्वल टू R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2RQ। ओके, नाउ वैल्यूज दिया हुआ है, PQR का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था, 5, 12 एंड 13, है कि नहीं। सो cos थीटा PQR, तो P हो गया 5, Q हो गया 12, R हो गया 13, तो ये हो गया 13 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय RQ मतलब क्या होगा, 2 इंटू 12 इंटू 13। सो इसको करोगे तो cos थीटा, ये 12 स्क्वायर 1 12 कैंसिल गया, ये 13 स्क्वायर से 1 13 कैंसिल गया। सो यहां पे बचा 13 प्लस 12 25 माइनस 5 डिवाइडेड बाय यहां पे बचा 2। सो cos थीटा इक्वल टू 20 बाई, मैंने कहीं पे कुछ कैलकुलेशन गलत किया, 5, 12 एंड 13 ही था ना, अरे सॉरी ये मल्टीप्लाई थोड़ी है, प्लस है दैट।
सॉरी, हाँ ये मल्टीप्लाई नहीं है ना, ये तो प्लस है, तो मैं कैसे कैंसिल कर सकता हूँ? कैंसिल नहीं कर सकता ना। तो ये था 13 स्क्वायर, ये था 12 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, और नीचे कितना था 2 इंटू 12 इंटू 13, ओके, 13 इंटू 12। तो इसको सॉल्व करो अभी। cos थीटा इक्वल टू 13 स्क्वायर कितना होता है 169, 12 स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 12 हो गया 130 और 26, 130 से 156, 156 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 156, 312। cos थीटा, सो यहां पे कितना आएगा, ये आ गया 169, 269, ये करोगे तो ये आएगा 288 डिवाइडेड बाय 312, 288 डिवाइडेड बाय 312। तो इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 12/13। सो व्हाट इज थीटा? देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 12/13। ऐसे ही रख देना इसको, ठीक है। तो थीटा निकालना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? cos इनवर्स 12/13। तो जिस दो के बीच में एंगल निकालने देगा वो दोनों को एक साइड लेके वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, जैसे डॉट प्रोडक्ट करोगे आंसर मिल जाएगा, ओके। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखो, पिछले वाले जैसा ही है। इफ a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, देन शो दैट a परपेंडिकुलर टू b। किसके बीच में निकालना है एंगल? a और b के बीच में। तो a और b को एक साइड में रखना है, दैट मीन जैसे दिया हुआ है वैसे ही रखना है, ओके। बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। सो a प्लस बी इक्वल टू सी, इसको ऐसे ही रखना है। अभी क्या करना है, c का डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो c डॉट सी इक्वल टू हो गया a प्लस बी डॉट a प्लस बी। तो c डॉट सी क्या मिलेगा? c स्क्वायर, ये a इंटू a स्क्वायर प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट a प्लस b इंटू बी स्क्वायर। सो ये हो गया c स्क्वायर। यहां पे इसको एक साथ लिख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पे a डॉट b डॉट a मतलब मैं लिख सकता हूं प्लस 2a डॉट b, because a dot b is equal to b dot a. Yes or no? Now a square plus b square हम लोग को क्या दिया हुआ है? It is equal to c square. So c square, a square plus b square की जगह मैं लिख सकता हूं c square plus twice a dot b means ab cos थीटा। c square को इस तरफ ले आओ, c square माइनस c square कितना होगा? 0। यहाँ पे क्या बचा? twice ab cos थीटा, twice ab divided by 0, anything divided by 0 is 0, so cos theta equal to 0। cos theta 0 कब होता है? When cos is equal to 90 degree, so cos theta equal to 0 means I can write in place of 0 I can write cos 90, cos 90 0 होता है, cos गया, theta equal to 90 degree। So if theta is 90 degree, a and b are perpendicular to each other। I hope यहाँ तक क्लियर है। तो थोड़ा बहुत सम्स प्रैक्टिस करो, जो मैंने करवाया है, क्वेश्चन आंसर दिया है वो प्रैक्टिस करो, थोड़ा खुद से भी बुक पढ़ना, ईच एंड एवरी चीज तो कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। और एग्जाम अच्छे से देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।